Good morning, students. Today we are going to discuss refraction through a spherical surface. Okay, we have already discussed the refraction through a plane surface in case of glass slab or any other thing in which the surface is plane in shape. But what if our surface is spherical in shape? Then what kind of refraction takes place in that surface? This we are going to see today. Okay. So let us consider a spherical surface. Let the name of this spherical surface is MPN and this is the principal axis. Okay. स्टूडेंट्स वी डोंट हैव टू पॉलिश दिस सरफेस फ्रॉम बिहाइंड. ओके, हम इसको पॉलिशिंग नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसको पॉलिशिंग कर देंगे तो लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन. बट हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन. इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली, उसको पॉलिश नहीं करेंगे. ओके, लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम बी न्यू and here let there be air and the refractive index of air is 1, right? This we have assumed. So let here be any object. What will happen, a ray will incident from O to point M. Okay, क्या होगा, इस point O से एक रे गई जो कि इंसिडेंट हुई M पर. अगर मैं इस M पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं like this and let the name of the normal be CL, then the angle OMC will be our angle of incidence, right? Now अब क्या होगा, जब ये लाइट रे एयर से दूसरे मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, right? So what will happen, since this is the rarer medium and this one is the denser medium, so what will happen, the light ray will bend toward the normal like this, right? And if we extend back this ray like this, then here at this point we will get our image such that this angle IMC will be our angle of refraction and that is R, right? तो एंगल OMC कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल IMC कितना हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आई होप यहां तक सभी को क्लियर है. ओके, लेट द एंगल विच दिस इंसिडेंट रे मेक्स विद द सरफेस, लेट दैट एंगल बी अल्फा एंड लेट द एंगल मेड बाय आई विद द सरफेस बी बीटा and the angle which this C makes with the surface, let that angle be theta. Then by Snell's law we know that nu is equal to sin I by sin R. ओके, हम जानते हैं स्नेल्स लॉ से दैट sin I is equal to sin R. नाउ स्टूडेंट्स यू ऑल्सो नो दैट कि जो साइन की वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है. इसका मतलब क्या, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट? हमको मालूम है ना, साइन 0 डिग्री पे साइन कितना होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और फिर वही अल्टरनेट ऑर्डर्स में चलने लग जाता है. इसका मतलब क्या, जो साइन की वैल्यू होती है वो केवल 0 से 1 के बीच में लाई करती है. ओके, इसका मतलब अगर मैं ये मान लूं कि ये जो एंगल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, देन sin I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to R. Then in that case what will happen, nu is equal to I by R, or from here we will get I is equal to nu R, right? Give it equation number 1. Now I consider this triangle OMC. In triangle OMC, students, we know one property of triangle, that the sum of two interior angles is equal to an exterior angle, right? दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. इसका मतलब क्या, यहां पे इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं OMC की, तो इस ट्राइंगल OMC में दो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए, एक तो अल्फा और एक ये I. तो इसका मतलब अल्फा प्लस I इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल. तो इस ट्राइंगल के बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सा है, थीटा. तो अल्फा प्लस
अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू थीटा, और यहां से मुझे अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट आई विल गेट आई इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, राइट। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। देन वी विल कंसिडर द सेकेंड ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल IMC. Okay, we are talking about IMC. In this triangle, again the sum of two interior angles is equal to an exterior angle. इसका मतलब बीटा प्लस आर इज इक्वल टू थीटा, और यहां से मुझे आर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो आर विल बिकम थीटा माइनस बीटा. ओके, नाउ here from here we will get the value of I and R both. On putting both these values in our equation 1, what do we get? Theta minus alpha is equal to nu into theta minus beta, right? Now students, we know that one thing, एक फॉर्मूला हमको पता है, that angle is equal to arc upon radius, right? We know this thing. So if we look into the diagram, then this angle alpha should be equal to the arc. It means MC upon में radius. Radius का मतलब क्या? OC, right? Similarly, if I talk about beta, then beta is equal to arc क्या हो जाएगी? Arc will remain the same, that is MC divided by radius हो जाएगी I to C, मतलब IC. Similarly, अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा के केस में थीटा इज इक्वल टू जो आर्क है वो हो जाएगी MP डिवाइडेड बाय जो रेडियस हो जाएगी दैट विल बी PC. ओके, now the time taken by light to travel from M to C and M to P will be nearly equal, right? लाइट को इस M से C में ट्रेवल करने में और M से P में ट्रेवल करने में लगभग बराबर टाइम लगेगा. So we can write MP here in place of MC, and इस OC की जगह पे हम लिख सकते हैं PO as the light time taken by light to travel from C to O and P to O will be nearly equal, right? Similarly, इस MC को हम लिख सकते हैं PC because the time taken by light to travel from M to C and M to P will be nearly equal, right? तो इसको हमने लिख दिया, MC को हमने लिख दिया MP, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे MP. डिनोमिनेटर में IC को हम लिख सकते हैं PI, और ये तो एज इट इज ही रहेगा MP PC. ओके, नाउ यहां से हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं अल्फा, बीटा और थीटा की. ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज in equation A, let this equation be named as A. Or one more thing we will do, students, we know that all the distances are measured from pole, right? इसलिए हम इसको PM नहीं लिखते, MP नहीं लिखते हुए PM लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होती हैं? पोल से. तो इसलिए हम P पहले लिखेंगे और बाकी दूसरी चीज जो है वो बाद में लिखेंगे. ओके, On putting all these values in our equation A, what do we get? थीटा की जगह पे हमने लिख दिया PM divided by PC माइनस अल्फा की जगह हमने लिख दिया PM by PO is equal to न्यू इंटू थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं PM by PC माइनस बीटा की जगह पे हम लिख देंगे PM by PI. Now we can easily recognize that PM is common in all the terms, so we can take PM common from all the terms. Okay, so what do we get from here?
1 by PC minus 1 by PO is equal to nu into PM we have taken common from here also. क्या बचा हमारे पास 1 by PC minus 1 by PI, right? Now what do we do students? PM से PM cancel. From here we will get P से C तक की डिस्टेंस. हमको पता है कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय R, राइट? माइनस वी नो दैट P टू O, P से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं U, मतलब राइट, इट इज डिनोटेड बाय U इज इक्वल टू न्यू इनटू, students we know that the distance between P to C, that is pole and center of curvature, is called as radius of curvature and it is denoted by R minus पोल से I तक की डिस्टेंस, पोल से I तक की डिस्टेंस को बोला जाता है V, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया V, right? Now from here on multiplying this nu in both the terms, what do we get? 1 by R minus 1 by U is equal to nu by R minus nu by V. अब हम इस RR वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और रेस्ट ऑफ द टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं. तो क्या आ जाएगा? अगर मैं इस 1 by R को उधर भेजूं तो what it will become? nu by R minus 1 by R is equal to, ये वाली जो टर्म है वो इधर आ जाएगी, इट विल बिकम न्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू, राइट? यहां से R हमने कॉमन ले लिया, न्यू माइनस 1 बाय R इज इक्वल टू न्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू spherical surface. Okay, whenever we talk about the refraction through spherical surface, then this will be the resultant expression where nu is the refractive index of the material, R is the radius of curvature, nu is again the refractive index, V is the distance of image from pole and U is the distance of object from pole, right? So I hope this topic is clear to all of you. Now the next topic that we are going to study is lens. Okay, students, whenever we talk about the reflection, then the first thing that comes to our mind is mirror, and whenever we talk about the refraction, then the first thing comes to our mind is refraction, is lens, right? So lens क्या होता है और कैसे हम लाइट को उसकी हेल्प से रिफ्रैक्ट करते हैं, all these things we are going to see. Okay, lens, basically what is a lens? Lens is nothing but a homogeneous transparent medium bound by two surfaces. देखो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि हम मिरर्स कैसे बनाते हैं. सपोज आई हैव टेकन अ ग्लास स्फेयर, राइट, एंड आई हैव कट इट लाइक दिस सच दैट आई विल गेट वन माइनर पार्ट एंड वन मेजर पार्ट. और मिरर बनाने के लिए हम क्या करते थे, इसमें पॉलिशिंग कर देते थे. बट यहाँ पे लेंस में हमको एक पार्ट हमने ये वाला काटा और दूसरा पार्ट हमने ये वाला काटा. ओके, सच दैट वी गेट टू पार्ट्स एंड इफ वी जॉइन दीज टू पार्ट्स आइदर लाइक दिस और लाइक दिस, then we will get the lens. Okay, हमने क्या किया, एक ग्लास का स्फीयर लिया, उसको दो पार्ट्स में कट किया, एक सच दैट दोनों पार्ट्स जो हैं वो सेमी माइनर पार्ट्स हैं और उन माइनर पार्ट्स को जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे जो डिवाइस बनेगा, दैट डिवाइस इज सेट टू बी लेंस. ओके,
there are two types of lenses, concave and convex. उसके पहले देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है. होमोजेनस. होमोजेनस का मतलब क्या होता है? एक जैसा. सिंस ये जो लेंस है वो एक जैसी दो सरफेसेस को जोड़कर बना है, इसलिए हमने इसको बोला होमोजेनस. लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, एज वी ऑल नो दैट, तभी उससे रिफ्रैक्शन हो पाएगा. मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस, राइट. दो सरफेसेस को जोड़कर, दो होमोजेनस सरफेसेस को जोड़कर जो डिवाइस बनता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? लेंस. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. कॉनकेव का मतलब क्या? कॉनकेव इज अ लेंस जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज बल्गिंग इनसाइड. ऐसा लेंस जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ झुकी हुई हो. एज यू कैन सी, इसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ झुकी हुई है, राइट. तो ऐसा लेंस जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ झुकी हुई होती है, उसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस. वाइल द लेंस जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस. ओके. कॉन्वेक्स के केस में रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ होगी. इट विल बी बल्गिंग outside, as you can see in the figure also, right. Now these concave and convex lenses can be bifurcated in three parts. ठीक है. plano concave, convexo concave, and the third one is double concave. ठीक है. वन बाय वन समझते हैं कि इन तीनों में क्या होता है. सिंपली हम नाम देख के भी समझ सकते हैं दैट ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस प्लेन हो और दूसरी कॉनकेव हो, ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉनकेव लेंस, है ना. सपोज द प्लेन सरफेस इज लाइक दिस एंड द कॉनकेव सरफेस इज लाइक दिस. तो इस तरह से जो लेंस बनेगा, उस लेंस को हम क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉनकेव लेंस. ओके. द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस का मतलब क्या? जिसकी एक सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई हो और दूसरी अंदर की तरफ बैठी हुई हो. इसका मतलब हमने ये एक सरफेस बना दी कॉन्वेक्स और ये दूसरी सरफेस बना दी कॉनकेव. ये वाली सरफेस जो है वो बाहर की तरफ उभरी हुई है और ये वाली अंदर की तरफ बैठी हुई है. तो ये वाला जो लेंस होगा, उस लेंस को बोला जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव. ओके. द नेक्स्ट वन इज डबल कॉनकेव. ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस कॉनकेव हों. इसका मतलब दोनों सरफेसेस अंदर की तरफ बैठी हुई हो, दबी हुई हो, उसको हम बोलेंगे डबल कॉनकेव लेंस. और दिस इज द फिगर ऑफ डबल कॉनकेव लेंस, राइट. So I hope all the three types of concave lens is clear to all of you. Now हम डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स के टाइप्स. कॉन्वेक्स भी तीन टाइप के होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड डबल कॉन्वेक्स. ओके. These are the three types of lenses. What do we mean by plano convex lens? So the lens whose one surface is plane while the other surface is convex in shape is called as plano convex lens. एक surface plane है, दूसरी surface बाहर की तरफ उभरी हुई है, तो इस तरह के लेंस को हम क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. देन कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेवो कॉन्वेक्स का मतलब क्या? एक सरफेस कॉनकेव हो, इसका मतलब अंदर की तरफ बैठी हुई हो, और दूसरी सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई हो, लाइक दिस, राइट. सो दिस काइंड ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. एंड द लास्ट वन इज डबल कॉन्वेक्स. तो ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, उस लेंस को हम बोलते हैं डबल
convex lens. This is the figure of double convex lens. So I hope the lens and their types is clear to all of you. Now जैसे हमने मिरर के केस में कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, वैसे ही लेंस के केसेस में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं that we are going to study now. Okay, first one is optical center. Optical center. तो जब भी किसी लेंस से लाइट रे बिना किसी डेविएशन के रिफ्रैक्ट हो जाती है तो उस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर. ओके, जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, राइट. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. सो अगर कोई लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट हो रही है कि उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? दैट पॉइंट इज सेड टू बी ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय O, राइट. बेसिकली होना क्या चाहिए था? लाइट रे को अपने पाथ से डेविएट हो जाना चाहिए था क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. जब लाइट रे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिफ्रैक्ट होती है और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर. सिमिलरली कॉनकेव के केस में भी देख लेते हैं. दिस इज द कॉनकेव लेंस. जब लाइट रे इस पॉइंट से पास होगी तो वो बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी और उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय O. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस. What do we mean by principal axis? This we are going to study. Suppose this is the convex lens. ये हो गया O, that is the optical center. एक इमेजिनरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सिमिलरली यहां पर भी दिस इज द कॉनकेव लेंस. ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर. इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ द थर्ड वन इज प्रिंसिपल फोकस. ओके, what do we mean by principal focus? This we are going to study. प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है द सेम थिंग जो मिरर के केस में हुई थी कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उसको हम बोलते हैं फोकस, राइट. तो सिमिलरली इस केस में भी अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो जिस पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. ओके स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि मिरर में तो केवल एक ही फोकस होता है लेकिन लेंस में दो फोकस होते हैं. ओके, क्योंकि लेंस जो है वो दो सरफेसेस से मिलकर बना है, राइट. इसलिए यहाँ पे दो फोकस होते हैं. एक को हम मानते हैं F1 और दूसरे को हम मान लेते हैं F2. ओके, तो लेंस के एक साइड हम मान लेंगे F1 और दूसरे साइड हम मान लेंगे F2. ओके, सिमिलरली अगर मैं कॉनकेव के केस में भी देखना चाहूं तो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. लेट अ रे विल इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वी नो दैट जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, राइट. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th ऑल्सो दैट जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है. तो ये लाइट रे को इस तरह से डाइवर्ज कर देगा सच दैट ऑन एक्सटेंडिंग इट बैक हियर आई विल गेट द फोकस. सो फोकस इज नथिंग बट द पॉइंट at which the light ray will intersect the principal axis after refraction or reflection. Okay, next one is
focal length, it is denoted by small f. The distance between optical center and focus is called as focal length. ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. ओके, सो दीज आर and then there is one more definition, that is center of curvature. So students, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको पता है कि मिरर के केस में क्या होता है, उस स्फेयर का सेंटर जिस स्फेयर को कट करके हमने मिरर बनाया है, लेकिन जो लेंस है वो दो सरफेसेस को जोड़कर बना है, इसलिए लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि ये हमारा लेंस है. ठीक है, ये लेंस जो है वो दो सरफेसेस को कट करके बना है, तो इस सरफेस का जो सेंटर होगा, ये इसको हम बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे 2f से. लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया जाता है 2f से. तो इस सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसको हमने मान लिया 2f1, और देन इस सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो हो जाएगा 2f2. ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्केव आल्सो वी कैन सी दिस इज द कॉन्केव लेंस. ये किसी एक सरफेस से बना है, इसकी इस स्फेयर के सेंटर से जो दूरी हो गई उसको हमने मान लिया 2f2, और इसको हमने मान लिया 2f1. सो द डिस्टेंस या द radius of that two spheres from where the lens is formed is called as center of curvature. It is denoted by 2f. Okay, so students, that's all for today's session. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.